Welcome to BGM Podcast channel. Today we are diving into a very important topic which affects every working professional, that is workplace ergonomics. And Jyoti, let's talk about ergonomics. What is ergonomics? So it is just not about fancy chairs and fancy desks. It's avoiding injuries in a workplace environment and increasing your productivity, right? So today I have a very special guest with me, Dr. Riduraj Verma. She has over 2 decades of experience in physiotherapy field, tons of research paper you have done, ma'am, in the field of physiotherapy, and presently she is a working professional she's a professor in Galgodias University and helping many new budding physiotherapists. Thank you, ma'am, for taking out such time for us. Thank you, Jyoti, for having me here. And this is a very nice opportunity, and this is a very good topic to talk about. Workplace economics is a very critical thing nowadays, as we are having sedentary lifestyle and we are having a sitting time, prolonged sitting time at the same place, and we are not having the time to move from our chairs. Should be discussed very thoroughly nowadays, but it is overlooked. It is critically overlooked, and people are not taking care of it, I must say. So, to minimize the work pressure or to minimize the pressure on our musculoskeletal, like muscle, like ligament, like tendons, so it should be there to have a thorough assessment of it and to have a discussion on this topic. Okay, thank you so much, ma'am. So let's start with the basics. What exactly is ergonomics and how it is so important for us? So ergonomics is a science of designing workstation. It's not about कि जैसा आपको वहाँ पर workstation मिल रहा है and you are forcing to do work in that only. It should be individualized. It should be customized according to the need of the patient, because it can put pressure on a neck, it can put pressure on spine, and it can put pressure on our wrist joint also. But what is happening here कि people are realizing it after starting the problems. तब वो ध्यान नहीं दे रहे हैं इस चीज पे, जबकि अगर प्रॉब्लम ना हो तब तक वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो ध्यान इस पर जब दे रहे हैं जब उनको ये पेन फील हो रहा है. जैसे कि जब पेशेंट को लगता है कि आज मुझे रिस्ट पेन हो रहा है, तो दे कैन ओवरकम इट. दे कैन थिंक चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा स्ट्रेस है एंड इट विल गो अवे आफ्टर लिविंग सम रेस्ट. But what is happening ki they are doing it repeatedly because this is the need of work, and they are doing it repeatedly, and they are creating the more load on the joint or the more load on the tendons, and in such way they are creating chronic issues for their own. That's fascinating. So that means the way we position ourselves, the way we sit, that actually affects our body health while working for so many hours of work. Yes. Surely it is occurring due to the prolonged hours of sitting, prolonged hours of having eyes on the screen, adjusting our back, adjusting our spine, adjusting our sitting side, hand rest. There should be a rest for wrist also if doing work for several hours. And you should take care of your eyes also, because they are also getting strained. And we are not doing the proper arrangement for our eyes, or what should be the level of that monitor also. So in such a way, we are creating so many problems. And one more important issue is we are ignoring the issue when we are sitting for a long time. What is happening? Our blood is going through it's pouring out towards the feet, and it is creating the issues like leg swelling. It is creating the issues like vascularity, vascular issues related to our blood circulatory system. After a long time, what patient is feeling, they can feel ankle swelling, they can feel pitting edema like वो इस तरह के उसको समझ सकते हैं कि जब वो ankle पे हाथ लगाते हैं या वहाँ पर finger लगाते हैं तो वहाँ पे गड्ढा बढ़ सकता है. And such swellings are increasing due to the collection of blood surrounding our joints. So they should take care of it, because it can be very harmful for their heart also. In this way, what is happening कि heart की तरफ blood नहीं जा रहा है, that is coming towards your feet. So अगर long time की बात करें तो it can affect their cardiac health also. What? So let's talk about real world causes. According to you, what are the most common workplace injuries caused by poor environments? Talk about the workplace injuries which can occur due to their work environments. First thing should be like neck pain. है ना, neck pain, क्योंकि आपका जो neck की muscles है
दे आर डूइंग वर्क फॉर सेवरल आवर्स, और आप अपनी नेक को कभी ऐसे रख रहे हैं, कभी इस तरीके से कर रहे हैं, एंड यू आर नॉट गिविंग द प्रॉपर टाइम टू गिव देम रेस्ट। क्योंकि कोई भी चीज के ऊपर अगर आप प्रेशर लगातार बना के रखेंगे तो उसकी जो वर्क एफिशिएंसी है दैट विल बी डिक्रीज्ड। और क्या हो रहा है धीरे धीरे कि नेक की मसल्स हमेशा टाइट होने की वजह से आपको शोल्डर में पेन आ रहा है, आपको ऊपर बैक में पेन आ रहा है, यू आर नॉट फीलिंग इजी। साथ साथ आपकी जो रिस्ट जॉइंट है, दूसरे टॉपिक पे अगर बात करें तो रिस्ट जॉइंट आपकी इसमें अफेक्ट हो रही है, क्योंकि आप उसको प्रॉपर सपोर्ट तो दे नहीं रहे हैं और आप लगातार उसको इस तरीके से यूज कर रहे हैं, फिंगर्स को यूज कर रहे हैं, तो इस तरीके से आपको कार्पल टनल सिंड्रोम का इशू आ सकता है, जो कि आपके रिस्ट के यहाँ से जो टेंडन्स निकलते हैं उनका इशू हो सकता है। दूसरा आपका जो हेड या फिर आपको कहें कि आपकी ब्रेन जो है उसकी एक्टिविटी भी कंस्ट्रेन हो सकती है, क्योंकि इतने लंबे वक्त तक एक चीज पर कंसंट्रेशन करना वो भी आपको आपकी वर्क एफिशिएंसी को लो कर देता है। मतलब कितनी देर तक आप करेंगे उसको ध्यान रखें। तो फिर नेक्स्ट थिंग आती है आपकी बैक। तो बैक के इश्यूज, क्योंकि आप लॉन्ग टाइम के लिए बैठे हैं और आप ब्रेक्स नहीं ले रहे हैं और आपको ये लगता है कि नहीं नहीं एक ही स्ट्रेच में काम खत्म कर दें, you are not having that time to move. You have a target complete even a day. So in such a way, there are various musculoskeletal related issues which are affecting your health, and not the musculoskeletal issues, your increase the issues related to your neurological like nerve impingement. नसें भी दब सकती हैं इन सब चीजों की वजह से। जैसे हमने अभी रिस्ट की बात की, या हम कोहनी की बात करें तो एक टेनिस एल्बो के नाम से भी एक प्रॉब्लम होती है, जो कि रिपीटेड मूवमेंट्स की वजह से हो सकती है, जहां पर आपकी नर्व भी अफेक्ट हो सकती है। और पेशेंट में फील की सिम्टम्स लाइक टिंगलिंग और नमनेस इन हैंड, कि हाथ में कुछ झंझनाहट सी हो रही है, सुन्न हो रहा है, हाथ ठंडा हो रहा है। तो इस तरह के सिम्टम में तो व्हाट इज हैपनिंग कि पीपल आर इग्नोरिंग, जब तक इग्नोर कर रहे हैं जब तक कि सैचुरेशन नहीं आ जाता है। That is so true. These things like such a small things, and but over time they really add up. And I realize कि these workplace ergonomics अगर सब लोग अप्लाई कर रहे हैं अपने ऑफिसेज में, these small changes can create a big difference and they can improve the productivity of that particular organization. That's so amazing to know. Now let's connect the dots. How does ergonomics actually improve product? It is such a nice question, और should be consider ये किस तरीके से आपकी वर्क एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकता है। फर्स्ट थिंग इज आपके जो नंबर ऑफ डेज एब्सेंट हो रहे हैं उसको रोक सकता है, तो इट कैन इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी। क्योंकि जब हमें मस्कुलोस्केलेटल इश्यूज आते हैं ना कि वी विल थिंक कि वो आई विल टेक अ लीव, आई विल टेक अ मेडिकल लीव टुडे बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग फिट टू गो टू द ऑफिस, और आई एम हैविंग अ बैक पेन, I am not able to bend forward, or I am feeling fatigue overload. So in such way, क्या करेगा employee? They will not go to their organization, and in such a way they will उनकी जो absenteeism है, number of days का absenteeism है वो बढ़ जाएगा medical. तो in such a way, productivity will be decreased for the organization. If they will feel comfortable, तो अगर वो ठीक फील करेंगे तो it will increase the work speed. वर्क स्पीड इन द सेंस कि अगर मुझे दर्द होता रहेगा पापा हाथ में तो मैं क्या करूंगी, मैं काम करूंगी थोड़ा सा, फिर से मैं इस तरीके से करूंगी, ओ आई फील पेन, मैं टैबलेट लूंगी, फिर थोड़ी देर के लिए मेरा मूड खराब होगा, फिर मुझे दिखाई देगा कि नहीं ये भी काम करना है, मेरे ऊपर ये प्रेशर भी है, फिर मैं काम करना शुरू करूंगी, बट इट विल डिक्रीज माई स्पीड। दूसरा, आपकी जो सिटिंग जो आवर्स है उनकी वजह से आप तो क्या होता है कि आपके कभी पैरों में दर्द हो रहा है, कभी आपकी नेक पे पेन हो रहा है, आपकी बैक में पेन हो रहा है, तो इस तरीके से ना वो आपकी प्रोडक्टिविटी को किसी ना किसी तरीके से अफेक्ट करते ही है। साथ साथ आपके मूड स्विंग्स होते हैं। जब दर्द होता है, पेन इज नॉट अबाउट कि सिर्फ दर्द की फीलिंग हो रही है, दर्द के साथ साथ आपका मूड भी डिस्टर्ब होगा। अगर आपसे ही ज्योति कोई पूछने लगे कि आज आपको कोई पेन है सपोज है, और आपको पूछने लगे कि पैर कांप रहा है, तो आप थोड़ा सा तो इरिटेट होकर एक बात जरूर कहेंगे कि प्लीज यार आज कुछ मत काम बताओ, आई एम नॉट फीलिंग गुड या आई एम हैविंग पेन। सो पेन से क्या होता है कि आपको इरिटेबिलिटी बढ़ती है, आपका मेंटल लेवल थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, आप डिप्रेस फील करते हैं और आपके अंदर वो एक गुड वाइब्स नहीं है। तो इसी तरीके से अगर हम वर्क प्लेस एर्गोनॉमिक्स का ध्यान रखेंगे तो शायद ये सारे इश्यूज को हम ओवरकम कर पाएंगे और प्रोडक्टिविटी को हम बता पाए। दैट मेक्स सो मच सेंस ना।
when the employees are not battling with pain. Yes, some food they will be more happy working in their workplace, and productivity will be more. Yes, so that's true. So let's get into solution. How can companies create more ergonomic workplace? Yes, before treating anything, before finding the solution of the problem, first we have to find out what is the problem exactly. So for this, a thorough assessment should be there. So if thorough assessment will not be there, so we cannot diagnose the problem and we cannot treat the problem. So first thing it should be there कि there should be a patient education, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, या फिर अवेयरनेस प्रोग्राम. Awareness program should be there because क्या हो रहा है कि employees hide their problems. They are not able to tell the problem. क्योंकि आप रोज रोज ना किसी को ये प्रॉब्लम बताओ है कि मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, अगले दिन फिर से बोलो मुझे आज बैक पेन हुआ है, तो फिर सामने वाला भी इस तरीके से बोलना शुरू कर देंगे, इसको तो मुझे दर्द अपना आ गई दर्द देखता है, ऐसा हमने देखा जाए. तो क्या हो रहा है कि आपको अपनी प्रॉब्लम को बताना आना चाहिए कि बिकॉज ऑफ दिस आई एम हैविंग दिस पेन, और ये फील करें कि मुझे ये सीटिंग की वजह से ही हो रहा है, जब मैं मूवी होती हूँ तब मुझे ये पेन नहीं होता रहा है. जब वो फाइंड आउट कर पाएंगे तभी हम उसका सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे. तो फर्स्ट थिंग शुड बी अ थॉरो असेसमेंट ऑफ वर्क प्लेस इकोनॉमिक्स. सेकेंडली, आप किस तरीके से इसको चेंज कर सकते. यू शुड हैव अ एडजस्टेबल हाइट का आपका चेयर होना चाहिए, एडजस्टेबल हाइट का आपका डेस्क होना चाहिए, और आपका जो वर्क स्टेशन है, लाइक अगर आप ये यूज कर रहे हैं लैपटॉप वगैरह, तो उसके लिए भी स्टैंड्स वगैरह आ गए हैं आजकल, जिसको अपनी हाइट के अकॉर्डिंग, अपनी आई की हाइट के अकॉर्डिंग मैच कर सकते हैं, जिससे कि आपकी आंखों को भी बार बार इस तरीके के मूवमेंट्स ना करना पड़े. और साथ में आपका आजकल हैंड रेस्ट भी आता है, जैसे कि रिस्ट का रेस्ट आता है, और माउस पे एर्गोनॉमिक्स तरीके के आ गए हैं. तो इन सभी सॉल्यूशंस के साथ हम लोग उसको मिनिमाइज कर सकते हैं. साथ में आप अपनी जो कैंपेन के लिए मैंने आपसे इसलिए बात की कि जो एम्प्लॉयर्स हैं या जो कंपनीज हैं, उनको इस तरीके की सेमिनार्स, इस तरीके की वर्कशॉप्स जरूर भी एम्प्लॉयज के लिए, फैकल्टीज के लिए करनी चाहिए, ताकि उनको बता सके कि स्ट्रेचेस का क्या इंपॉर्टेंस है, बीच बीच में रेस्ट लेने का क्या इंपॉर्टेंस है, बीच बीच में एक हम बोलते हैं पेशेंट्स को अधिकतर बोलते हैं कि आप 5 मिनट के लिए घूमिए, तो उसका क्या इंपॉर्टेंस है. जब वो ये समझेंगी तभी इसका सॉल्यूशन मुझे लगता है हो पाए. True. I agree with you. And if we talk about core principles of good office ergonomics, what are those principles you will define? Actually, workplace ergonomics should take care of physical need and cognitive need of the patient. So, what should be there? अपने अभी एम्प्लॉय जो है उनको भी अपना किस किस चीज का ध्यान रखना है. उनका जो पॉस्चर है वो न्यूट्रल होना चाहिए. इट शुड नॉट बी कि फॉरवर्ड बैंड हो जाए, और इट शुड नॉट बी कि आप बैकवर्ड इस तरीके से पीछे की तरफ ट्रीट हो. क्योंकि अगर आप फॉरवर्ड बैंड करेंगे तो भी आप स्ट्रेन पुट ऑन कर रहे हैं अपनी मसल के ऊपर, और बैक में भी अगर कर रहे हैं तो आपकी जो मसल्स को ओवर यूज आप कर रहे लो. और साथ साथ पीछे अपनी जो शोल्डर्स है, अपना जो हेड है, उसको आप ध्यान रखें. और इट शुड बी वेरी अलाइंड. वो जिस तरीके से जैसे इस तरह बैठ जाते हैं स्टूप पोस्चर में, या फिर नेक को बहुत ज्यादा बेंड करते बैठ जाते हैं, बैक को बहुत ज्यादा, थोड़ी देर ही हम इस तरीके से बैंड करते बैठना, थोड़ी देर के लिए इज ओके कि आप अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हो. बट अगर आप बहुत लंबे वक्त तक इससे बैठ रहे हो तो दैट इज नॉट ओके, और दैट इज नॉट फाइन विद फॉर योर स्पाइन. साथ साथ आप अपने जो वर्क के बीच में एक आवर्स है ना, मैंने अभी बताया था कि आप थोड़ा सा ब्रेकिंग आवर्स को बनाए. तो जैसे आप अगर 1 घंटा काम कर चुके हैं तो आप खड़े हो अपनी सीट से और 10-15 मिनट के लिए इस तरीके से थोड़ा लॉन्ग राउंड करते हैं, और तब आके बैठे. और साथ में सिंपल स्ट्रेचेस, लेकिन नेक को स्ट्रेच करना, अपने शोल्डर को ऊपर की तरफ लेते जाना, नीचे लाना, ये कुछ स्ट्रेचेस हैं जिनको आपको करना ही चाहिए. साथ में अपने एंकर पंपिंग भी कर सकते हो, अपने पैरों को इस तरीके से चला के, तो वो भी आप कर सकते हो, ताकि जो आपका ब्लड है वो सर्कुलेशन प्रॉपर बना. Okay, so key is making sure everything from desk to your screen height should be in a position in which your body should be stress free. Yes, while working on it. That's a very body thing to know for all working professionals. The next, many workplaces have poor ergonomic setups without even realizing it. What are some of the most common mistakes you'd mention? आजकल ऑर्गेनाइजेशंस में भी क्या कर रहे हैं, दे आर गिविंग अ गुड फर्नीचर्स और गुड वर्क स्टेशन, दे आर प्रोवाइडिंग,
बट दे आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ कि कौन से बैक के लिए सही होगा और किस तरीके से वो अपने इन सब चीज़ों को जो हमने अभी इश्यूज हमने डिस्कस किए उनको आप कैसे मिनिमाइज कर सकते हो। इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि जो फिटनेस एडवाइजर्स है या एर्गोनॉमिक डिजाइनर्स है, एर्गोनॉमिक वर्क स्टेशन के डिजाइनर्स है, उनसे बात करना बहुत जरूरी है, उनकी कंसल्टेशन देना बहुत जरूरी है कि आप स्पेंड करें, कि आप खर्चा कर दें कि आपने सारा का सारा फर्नीचर खरीदिए, उससे पहले उसको एनालाइज करना बहुत जरूरी है और इंडिविजुअल नीड को समझना जरूरी है कि भाई किस तरीके से ये फिजिकल एक्टिविटी को आपके खराब कर सकता है। मैं क्या देखती हूँ ऑर्गेनाइजेशंस में कि जितना मैनेजमेंट है या हाई मैनेजमेंट है, दे आर टेकिंग केयर ऑफ देयर बैक्स वेरी वेल, बिकॉज वो क्या कर रहे हैं, अपने लिए तो चेयर बहुत अच्छा खरीद रहे हैं, लेकिन क्या उन लोगों के लिए खरीद रहे हैं जो सच में ही 8 घंटा बैठा है? क्या जो 10 घंटा आपके लिए प्रोडक्टिविटी, जो आपके लिए एक रिवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, उनके लिए आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैं बोलती हूँ कि उनके लिए भी या उनके एस्पेक्ट से भी इनको समझना चाहिए और पहले ये एक सर्वे करना चाहिए, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय एंड दे शुड finalize their furniture put into their doors. Yeah. So these seems like small fixes, but they actually have so much of effect on employees' productivity in any company. Yes, right. So many workplaces have poor ergonomics set up without even realizing it. So what are the most common problems or mistakes people will say ki because of those things ergonomic changes is required? Yes, ergonomic ranges are required to minimize the pressure over the all over the body or several joints including your neck, your back, your wrist and legs also. So first thing we should take care कि आपका जो back support है और lumbar support है, it should be very proper and it should be according to your back curve, जो natural back का curve है उस तरीके से होना चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि back के curve को वो support ना कर रहा हो। दूसरी चीज ये है साथ में कि आपका जो हाइट है उसकी मॉनिटर की, वो या फिर आपकी डेस्क की हाइट ऐसी होनी चाहिए कि आप उसको एडजस्ट कर सके अकॉर्डिंग टू योर आईज लेवल। थर्ड चीज जो आपकी चेयर है उसमें आपका हैंड रेस्ट भी इस तरीके से होना चाहिए कि आपकी जो एल्बो है या आपकी रिस्ट है उसको ओवर स्प्रे ना करना। साथ में आपका जो माउस एर्गोनॉमिक्स है, माउस को या फिर आपकी जो टेबल है उस पर इस तरीके का सपोर्ट होना चाहिए कि आपके रिस्ट और आपकी फिंगर्स भी सपोर्टेड है ड्यूरिंग वर्क टाइम। तो इस तरीके से छोटे छोटे चेंजेस करके हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं और साथ साथ आप बीच बीच में जरूर वहाँ पर इतना स्पेस हो कि आप थोड़ा वॉक कर सके, आप थोड़ा स्ट्रेचेस कर सके। तो इन सब छोटे छोटे चेंजेस से आप काफ़ी बड़ा एक बहुत ज़्यादा एडवांटेज आपको मिल सकती है और ओवरऑल आपका एफिशिएंसी को आप एनहेंस कर सकते हैं। So these seems like very small changes, but we can actually have a very longer effect, a very good effect on your productivity in the overall head, right? So let's give a lesson a step-by-step guide to create an ergonomic workplace. Where should they start? First, they should take care of their neck, then they should take care of their back, shoulder, head. This position should be neutral. तो थोड़ा सा इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उनको स्टेप बाय स्टेप की का मतलब ही ये है कि आप अपने टिप टू टो हर जॉइंट को आप यहाँ पर कंसीडर करें। ऐसा नहीं है कि वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट बैक, कि भाई बैक ना पड़ता है तो बैक पे स्ट्रेन आता है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, वी आर टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरी स्मॉल एंड बिग जॉइंट्स, राइट? सो वी शुड टेक केयर ऑफ आवर हेड, वी शुड टेक केयर ऑफ आवर shoulders, our wrist, our elbow, our forearm, our back and our hips and our knees also. Because knees पे अगर बहुत लंबे वक्त तक ऐसा बैंक पोजीशन नहीं रहेंगे ना, तो we are putting pressure on that and we are increasing the loading on that, a reason for progressive degeneration of our knees also. क्योंकि the human body is made for a movement. ये रुकने के लिए नहीं है, सिर्फ human body चलने के लिए बनी है। तो we should be active enough and we should reduce the sitting time and we should enhance the stretchings or movement at each and every joint during our work time also, so that we can be flexible, we can be strengthening of our body and we should give a proper time to our body to take recover, to avoid that re-strain and re-injury.
That sounds like an excellent plan. Do you think companies should hire ergonomic professionals, consultants to help with? Yes, yes, it should be there. It should be there because what is happening now? We are hiring the architect, we are hiring the interior designer for our house. So what we are spending a lot on that. हम क्या कर रहे हैं कि हमारा घर बहुत सुंदर हो, हमारा घर ऐसा दिखे या मतलब हमारा घर का आउटलुक ऐसा हो. But it is about our health. It is about our body. तो we should take care of it very thoroughly. और आप ये देखिए कि हमने अभी जैसे डिस्कशन किया कि इससे कैसे कैसे प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, मूड चेंज हो जाते हैं, पेन हो रहा है, रेस्ट्रिक्शन फील हो रहा है, एंड वी आर नॉट एबल टू डिस्कस इट विद आवर कलीग्स आल्सो ऑन एवरीडे बेसिस. सो इट शुड बी देयर. अब हमारे पास एर्गोनॉमिक्स की कंसल्टेंट्स भी हैं एंड दिस इज अ ग्रोइंग फील्ड नाउअडेज, और हम उनसे कंसल्ट कर सकते हैं and can create a good ergonomic environment for our employees. So, if we talk about any 5 or a few steps that needs to be followed to improve the ergonomic of a workplace, what will be those steps? It should be started with the assessment first. So first we should assess the workstation or workplace. Whether the problem is night actually. Second thing is adjustable furniture should be there, which could be adjusted अकॉर्डिंग टू देयर हाइट. क्योंकि कई बार क्या होता है एम्प्लॉय की हाइट बहुत छोटी होती है तो दे फील वेरी डिफिकल्ट कि अगर ऊंचा होगा वर्क स्टेशन तो दे विल हैव टू पुट अ मूव ऑन देयर जॉइंट्स. और कई बार होता है कि एम्प्लॉय की हाइट बहुत लंबी हो सकती है तो उसके अकॉर्डिंग अगर लो वर्क स्टेशन होगा तो इट पे पुट अप मोर स्ट्रेस ऑन देयर जॉब. देन थर्ड थिंग शुड बी कि डेस्क लेआउट. तो वी कैन इम्प्रूव द डेस्क लेआउट ऑल्सो. डेस्क लेआउट इन द सेंस ऑफ कि शुड बी लाइक दिस की टू मिनिमाइज द स्ट्रेन ऑन द जॉय, कि अब वो उसके अप्रोच में हो. इट शुड बी लाइक दिस. तो थोड़ा सा स्पेशियस होना चाहिए, ऐसा हो कि उसमें हाथ को चलाने के लिए या कुपनी को रखने के लिए, लिस्ट को रखने के लिए प्रॉपर जगह होनी चाहिए. नेक्स्ट थिंग, यस पेशेंट एजुकेशन, या फिर हम कहें कि एम्प्लॉय एजुकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. वेरी हमें उन्हें ये भी एजुकेट करना है कि वो उनके मसल पर अगर स्ट्रेन ऐसे आ रहा है या फिर वो इस तरह पेन फील कर रहे हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट थिंग इज सिटिंग आवर्स है, दैट शुड हैव अ ब्रेक इन बिटवीन. बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होने चाहिए वो, तो बीच में उनको उठने की वहाँ पर ऐसे परमिशन होनी चाहिए कि यस दे कैन गो. आप रिमाइंडर भी उनको दे सकते हैं, इस तरीके का भी कुछ एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि उनका एक प्रॉपर टाइम हो कि यू शुड टेक अ ब्रेक एंड do stretches and come to your workstation back. So there are 6 steps we should follow. Step 1, assess the workstation like you said. Step 2 was provide adjustable furniture according to their height. And the third step would be like improving the desk layouts. And the fourth one will be the movement encouragement. Patient or the employers should have that break and in between to move. And there should be an encouragement from employers as well. And the fifth one you said, employer education. Yes. Why actually I am taking this patient education because this is my field, and we are interacting with so many patients on the daily life. That's why it's coming in on my tongue. Even I was using the word needs in place of employees because the term we deal with patients in physiotherapy. Okay, let's start talking about what businesses lose when they don't prioritize ergonomics. What are the biggest hidden costs? Yes, hidden cost is too high. We cannot think about it, or we are taking it very easy. हम बहुत ऐसे सोचते हैं कि नेग्लेक्ट कर देते हैं कि अरे क्या फर्क पड़ता है. बट अगर ध्यान से सोचे तो क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, लाइक जैसे कि एब्सेंटिज्म ज़्यादा होगा, एम्प्लॉय सिक लीव अवेल करेगा और दे विल नॉट गो टू देयर ऑफिसेज. क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स है ना, जो हम छोटी छोटी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, मस्कुलर स्केलेटल इश्यूज है, ये हमारी स्पीड को कहीं ना कहीं रोक देते हैं. हमारे मतलब काम करने के जो स्पीड है उसको कहीं ना कहीं बिल्कुल स्टॉप कर देते हैं. तो फर्स्ट थिंग इसी तरीके से ये बढ़ेगा. और सेकंड, आपकी जो मेडिक्लेम हर कंपनी आजकल दे रही है,
तो मेडिक्लेम में भी यहाँ पर ज़्यादा लोग उसको अवेल करेंगे और इस तरीके से कंपनी की जो कॉस्टिंग है वो भी बढ़ जाएगी, क्योंकि ट्रीटमेंट का और रिहैबिलिटेशन इज नॉट अबाउट कि एक दिन में रिहैबिलिटेशन हो जाता है। रिहैबिलिटेशन इज ऑल अबाउट फंक्शनल ट्रेनिंग की तरफ लेके जाना, पहले पेन रिलीफ करना और फिर उसके बाद में उसके स्ट्रेंथनिंग पे लेके जाना और फिर फंक्शनल ट्रेनिंग पे लेके जाना। तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस और लगभग महीना 2 महीने का ट्रीटमेंट अगर चलता है तो आप लगा लीजिए कि एक एम्प्लॉय पे कितने खर्चा हो सकता है। दूसरा नेक्स्ट थिंग ये हो सकती है कि जो हमारा मतलब काम करने का जो एक मूड है, एनवायरनमेंट है, वो डिस्टर्ब हो जाता है और हम थोड़ा सा लेजी फील करते हैं और उतना बूस्टअप फील नहीं करते हैं। तो ये भी हमारी ओवरऑल कॉस्टिंग को बढ़ाता है कि हम ऑफिस में तो जा रहे हैं बट वी आर नॉट एज मच प्रोडक्टिव एज एम्प्लॉयर वांट। नेक्स्ट थिंग कि आपका जो एक ओवरऑल मोरल है या आपका जो एक लेवल है, मेंटल लेवल है, उसकी भी पीस कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है, वो भी आपकी प्रोडक्टिविटी को रोक सकता है। नेक्स्ट थिंग इज हायर एम्प्लॉयज टर्नओवर, कि अगर मुझे यहाँ एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिल रहा है या यहाँ मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रही, यहाँ का जो वर्क स्टेशन है वो मेरे लिए एफिशिएंट नहीं है या मैं उतना प्रोडक्टिविटी उस पर नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं क्या करूँ? तो मैं चेंज कर लूंगी। मैं आई विल सीक फॉर द ऑर्गेनाइजेशन हु आर गिविंग मी सच अ नाइस अपॉर्चुनिटी और सच अ गुड एर्गोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो इस तरीके से स्विचिंग बढ़ जाती है। तो यू कैन नॉट रिटेन योर एम्प्लॉय इन दिस वे। और रिपीटेटिव स्ट्रेन की वजह से मोर वर्कप्लेस इंजरी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि मोर वर्कप्लेस इंजरी इन द सेंस ऑफ कि आपको कार्पल टनल सिंड्रोम डेवलप हो सकता है, आपको स्पॉन्डिलोसिस ऑफ नेक डेवलप हो सकता है, आपको लंबर लो बैक एक, क्रॉनिक लो बैक एक डेवलप हो सकता है, आपको हो सकता है कोई नी की कोई इंजरी हो जाए बहुत लंबे वक्त तक ऐसे मोड़ के रखने से या उसको स्ट्रेस में रखने से। तो इस तरीके से रिपीटेटिव इंजरी, और रिपीटेटिव इंजरी ना आपका बहुत बड़ा सोर्स हो सकते हैं एक क्रॉनिक प्रॉब्लम बनने का। क्योंकि जब हम छोटी छोटी चीजों को अवॉइड कर रहे होते हैं ना कि चलो ये तो छोटा सा दर्द है, और छोटी तकलीफ को बड़ा बनते हुए फिर वक्त नहीं लगता है, और तब हम रियलाइज करते हैं ओ तब मैं रुक जाता या तब मैं उस पेज को चेंज कर लेता तो ये इतनी बड़ा इशू नहीं बनता। इवन पेशेंट्स ना, इवन एम्प्लॉय सर्जरी तक भी पहुंच जाते हैं अगर हम छोटी छोटी चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं। That alarming, even that's alarming, really alarming. Even if companies or employees are not taking care of this, seeing any changes or any injuries, but there can be a hidden injuries present in the employees because of all these mistakes we are discussing. Wow. So let's dive deeper into how poor ergonomics directly affects productivity. There are some specific ways this happens. Okay, how it is affecting productivity? As हम लोग इतने लंबे वक्त से इस पे चर्चा कर ही रहे हैं। So productivity को, क्योंकि कोई भी पेन होगा ना, it will be a barrier in your growth. ठीक है, you cannot be as productive as you want. And we have already discussed about कि it can give rise to various musculoskeletal issues, various neurological issues, circulatory related issues. So what is happening here? We are feeling strained, we are having back pain, we are having neck pain, we are not in a good mood, or we are realizing कि yes, something is getting wrong with my body. I'm not able to sit, I'm not able to move my hand in the way which I want. So what will happen? It will definitely decrease the overall productivity of that organization. और ये इस तरीके के जो रुकाव है या आपकी काम में जो अड़चन डालते हैं, तो जो दर्द है आप भी कभी अगर आप फील करेंगे तो दर्द में आप कभी भी एक अच्छे मूड में और अच्छे इस तरह से नहीं सोच सकते कि नहीं आज तो मैं ये भी कर लूंगी वो भी कर लूंगी, क्योंकि दर्द होता है तो हम सोचते हैं कि ना आज ये नहीं करूंगी, आज ये नहीं करूंगी, तो वी फील रेस्ट्रिक्टेड. So in that way it is affecting. That makes sense. If someone is in pain, they won't be in their best productive way, right? Yeah. So in your experience, have you seen any case where businesses ignored ergonomics and paid the price? Repetitive strain can put extra pressure on our various joint और very small joint को ना हम कभी कंसिडर भी नहीं करते. हम सोचते हैं कि बस घुटनों में दर्द है, शोल्डर में दर्द है, वाई नेक में दर्द है, तो वही एक इशू. और अगर आपकी छोटी फिंगर्स में आपके थंब में दर्द हो रहा हो तो हम कई बार उसे इग्नोर करते हैं. तो आई वांट टू शेयर अ रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ माइन हियर.
So I was working with the printing team. What I have to work is I have to pick the papers, bundle of papers, my hand. So what I was feeling it after 2-3 days because I was repeatedly doing it. और मुझे ये करना ही था because that was the demand of that work. So when I was doing it, I feel pain over here. It was a mild pain over here. So but instead of, although I know about it, but I was working it, I was doing it repeatedly. So what happened after 5-6 days or after 1 week of period was there, I was having such a severe pain here that I was not able to pick that bundle of paper. Or I feel that weakness in my hand, I was not able to pick it, and I discussed with my colleague, I am feeling this. So she also said to me, you are ignoring your problem. It is due to repetitive strain and you are making your problem chronic. So you should take care of it. And I find out it was like decantinosynovitis. लोगों ने इसका नाम भी नहीं सुना होगा. It was like कि छोटे-छोटे tendons होते हैं, rope-like structures होती हैं जो हमारी इनके movements को proper करा पाती हैं, हमारे fingers के, हमारे thumb के. लेकिन repeatedly हम उसको use कर रहे हैं और over use कर रहे हैं. तो हम वहाँ पर उसको और ज्यादा इंजरी के लिए तैयार कर रहे हैं. तो व्हाट शुड वी डू इन दैट वे? अगर आपको कोई भी मस्कुलर स्केलेटल इशू हो रहा है तो फर्स्ट थिंग यू शुड स्टॉप दैट मूवमेंट. फर्स्ट रेमेडी शुड बी यू शुड स्टॉप दैट मूवमेंट. और आप वहाँ पर आइस लगाएं, आप वहाँ पे कुछ ट्रीटमेंट शुरू करें. और अगर आप उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो यू शुड टेक केयर good consultant opinion or for physiotherapy opinion or ergonomic opinion, I can say. So it should be treated at that time only, so that कि वो बड़ा ना बच जाए. Was that happened with, I'm really sorry that happened with you, and was any other reason behind it? Was it because of your prior experiences or sitting job? You also have a sitting job with university. I can guess like you must be working on desk and with computer. Yes. So was it somewhere related to that also? Yes, it could be somewhere related to that also. That's why I am saying I am using the word repetitive strain, because we are ignoring that at the time of injury. जब हम पहली बार दर्द को फील करते हैं तो तब हम सोचते हैं कि ये ठीक हो जाएगा. Nothing, we should not bother, मतलब we should not be bothered about it. लेकिन धीरे धीरे वही पेन कितना ज्यादा सीवियर हो सकता है वो हम नहीं समझते हैं उस वक्त. और जब हमें फिर थंब स्प्लिंट लगानी पड़ती है, हमें फिर टेनिस एल्बो बैंड पहनना पड़ता है, आप रिस्ट बैंड पहन रहे हो, और फिर जब आप वर्क प्लेस में आ रहे हो तो इट शुड विल लुक ऑकवर्ड. और लोग पूछेंगे अरे अब क्या हुआ, तुम्हें क्या हुआ. तो मतलब हमें सपोर्टिव डिवाइसेस का या हमें ऑर्थोटिक्स का फिर सहारा लेना पड़ता है. तो बेटर है कि आप उससे पहले वाले फेज में ergonomic चेंजेस कर लें और इन चीजों को बढ़ावा ना दें. That makes so much sense, ma'am. Yes. So let's get practical. What are the most common ergonomic issues that businesses should watch out for? Okay, they should take care of their sitting, किस तरीके से वो बैठे हैं. तो height should be, जो आपका चेयर है, that height should be adjustable. Workstation height like table height should be adjustable. और अगर टेबल की हाइट एडजस्टेबल नहीं है तो दे शुड प्रोवाइड दैट. कंप्यूटर के लिए स्टैंड होता है या लैपटॉप के लिए स्टैंड होता है, दे कैन यूज इट. और क्योंकि वो भी एडजस्टेबल में ही आते हैं. और प्रॉपर हैंड रेस्ट होना चाहिए. और जो बैक सपोर्ट है ना, उसको हम एम्प्लॉयज को भी ये चीज सोचनी चाहिए कि हम ना अपने बैक को बार बार उसके ऊपर, कई लोग ना ऐसे बैक को पीछे लेके जाते हैं, आगे लेके जाते हैं कि ये तो मूवेबल है चेयर. तो वहां पे भी ख्याल रखना चाहिए कि आप अपने नॉर्मल नेचुरल कर्व से ज्यादा मूवमेंट्स ना करें और रिपीटेड मूवमेंट्स ना करें, क्योंकि इट कैन अफेक्ट योर हेल्थ ऑफ योर स्पाइन. Okay, so these businesses want to improve all these changes, and so where should they start from? What are the steps they should follow? Yes, again I must say here that first they have to find out where is the problem, what type of, they can do survey. First they can start with the survey, and they can do survey ki what type of problems their employees are facing or what type of musculoskeletal issues they are facing, and then they should discuss with the ergonomic advisors. They can tell in the best way ki what should be the changes, create a stressful environment or stressful workplace ergonomics. Sounds practical, and these are, I'll say, easy to implement as well, right? Yes. Any other message, any other suggestion would you like to add on to businesses
corporate companies in which they can improve their ergonomics? Yes, सबसे पहला तो मैं यही बोलूंगी कि उनको क्वेश्चनर बेस्ड सर्वे जरूर अपने यहाँ पे अरेंज करना चाहिए कि हाउ देयर एम्प्लॉयज आर फीलिंग अबाउट द वर्क स्टेशन और अबाउट द एनवायरनमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वो ही ज्यादा बेटर बता पाएंगे कि उनको किस तरीके की प्रॉब्लम फील हो रही है और वो उसको कैसे सॉल्व कराना चाहते हैं. फर्स्ट थिंग दे हैव टू फाइंड आउट कि कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है. दे कैन डू अ सर्वे फॉर दैट. एंड सेकेंडली दे हैव टू इन्वेस्ट इन अ राइट डायरेक्शन, है ना. देखिए फर्नीचर पे तो वो तब भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट अगर आफ्टर टेकिंग अ कंसल्टेशन ऑफ एर्गोनॉमिक स्पेशलिस्ट तो वो अच्छे से उस पे फिर उनका जो एक्सपेंसेस होंगे वो बहुत ज्यादा नहीं है कि एक्सपेंसेस की लाखों करोड़ों में एक्सपेंसेस हैं, पर छोटे छोटे चेंजेस को ध्यान में रखते हुए, इन एडवाइजरी को ध्यान में रखते हुए दे कैन मेक अ बिग डिफरेंस और अपने वर्क स्टेशन को वो प्रॉपर क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आपके स्ट्रेन को मिनिमाइज करेगा और प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करेगा. So, ma'am, we discussed so many problems can happen because of all these ergonomic issues in workplace. So, what are the strategies you will say that HR employees can follow and the companies can follow to improve the productivity and reduce absentees, the sick leaves we are discussing about it? Yes, very nice question or real-time question. So, I have already told you, assessment is the best key, or assessment is the key for a good diagnosis and good treatment. What they can do is they can plan a thorough assessment of their employees, good physiotherapists. So what can they can hire the physiotherapist in the companies, और जो physiotherapist है वो according to the individual needs. कैसा, क्योंकि आप ये नहीं कर सकते कि इसका पोस्चर ऐसा है तो दूसरे का भी ऐसा होगा, या इसको ये वाले मस्कुलर स्केलेटल इश्यूज है दूसरे को भी यही होंगे. इट इज वेरी डिफरेंट बिकॉज एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट. जैसे आपने गाना सुना होगा, हम तुम अलग अलग हैं, फर्क है. हाँ, आप में भी फर्क है, मुझ में भी फर्क है, ठीक है ना. तो उसके अकॉर्डिंग वी शुड हैव द असेसमेंट. देन वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड वी हैव टू मेक अ चार्ट कि what are their requirement according to their individual needs, and we can prescribe the better treatment strategies like you have to do it, you have to avoid it, what to do, what to not to do. So we can plan it out, but with the help of physiotherapist. Then after that we give a customized ergonomic workplace also. But देखिए चेयर कितनी भी अच्छी हो, but prolonged sitting is not good for health, right? So we should have a patient education or employee education in the way कि movement is the key. आपको चलना है, आपको उठकर स्ट्रेचेस करने हैं, और in this way they will helping you out. So इस तरीके से हम अपने इस पूरे बर्डन को रिड्यूस कर सकते हैं और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं. So, like you said, movement is the key. So, what can a business do to encourage the movement? Yes, they can give reminders, है ना. सिटिंग जैसे बैठे हैं तो कुछ ऐसा रिमाइंडर लगा सकते हैं कि आप उठिए अपनी जगह से और थोड़ा मूव कीजिए, और थोड़ा एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, टीम एक्टिविटीज को बढ़ा सकते हैं. बीच बीच में एम्प्लॉयज के लिए कुछ एक्टिविटीज प्लान कर सकते हैं. और हर ऑर्गेनाइजेशन में मुझे लगता है कि एम्प्लॉयज के लिए भी एक्टिविटी एरिया होना चाहिए. जैसे कि आजकल मैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन में देखती हूँ कि दे आर सेटिंग अप द स्मॉल जिम्स टू वर्कआउट, लाइक. तो क्योंकि आजकल इतना हैक्टिक शेड्यूल हो गया है ना कि अपने घर जाके किसी को टाइम नहीं मिलता है, वहीं से इतना ड्रेन्ड होके घर पे पहुंचते हैं कि दे आर नॉट फाइंडिंग टाइम. तो आप कुछ इस तरीके की छोटी छोटी एक्टिविटीज करा सकते हैं. साथ में स्टैंडिंग मीटिंग्स कर सकते हैं कि आपने सबको एक बार बुला लिया अपनी चेयर से और खड़े खड़े ही मीटिंग कर ली. लेकिन इट शुड नॉट बी वेरी लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड. ऐसा ना हो कि घंटों खड़े रहे बेचारे. बट मतलब इस तरीके से हम छोटी छोटी चीजें करके और एक्टिव पार्टिसिपेशन बढ़ा के एम्प्लॉय का, तो हम इसको ठीक कर सकते हैं. That makes sense, ma'am. Just standing or stretching every hour can help, definitely. Yes. So, this has been such insightful discussion we had. So, we have reached to our last segment, ma'am. This was a very good, amazing discussion we had, very insightful discussion we had with you, ma'am. So, what are the key takeaways for our listeners that you will say? Yes, Jyoti, it was a nice discussion we had. So, I want to say to our listeners that workplace ergonomics is an investment. It is not an expense. Second thing, we should take care of the well-being of our employees because to increase their productivity. And third thing is simple adjustment can give
a better change or big change in your life. Fantastic insights, ma'am. Thank you so much for sharing such insightful thoughts and very helpful for our listeners as well. Thank you so much for taking your precious time out for us. And to our listeners, stay tuned for many more informative podcasts.